Assalamu alaikum, dear students, ladies and gentlemen. Today, what we will be doing is that we will be continuing from the discussion that we had in the last session. And if you recall a little bit, we had done two things in that session. We had concluded with what is a strategic group map. And with that, we had tried to develop a strategic grid that was presented by Anzov, and it was also known as the growth matrix. So while we will be using the Anzov growth matrix to illustrate certain features of strategy, marketing strategy, we will try and use the applications and further understand what is the strategic group map. We had explained that all companies competing in an environment do have relevance to the organization which is trying to compete, for which we are as representatives are going to draw a strategy, but we need to understand where should we focus on while we are developing our strategy. To do this, we will have to go back a little to our earlier lectures where we had created the concept of competitive advantage. And if you recall, during that session of competitive advantage, we had suggested that competitive advantage is basically an advantage that a company creates in the market in comparison with the competitors for the customer, which means the customer has to acknowledge that. और वहीं हमने ये भी बात की थी कि these competitive advantages का जो source है वो company की capabilities और उसके resources में होता है जो कि strategic resource हैं. Now, keeping these 2 points in mind, what we have to also understand कि जो competitors हैं उनकी एनालिसिस हम कैसे करें, बिकॉज फाइनली इन द लास्ट स्टेज वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंपैटिटर्स as much as we need to understand our own company and our strengths and weaknesses. And obviously we will be drawing our logic from the customers, उनकी needs, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनके जो desires हैं, how can we satisfy them the most. बट उसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो कंपैटिटर्स हैं उनके पास क्या वैल्यू क्रिएटिंग सिस्टम्स हैं, सो दैट वी शुड बी एबल टू डू समथिंग मोर. नाउ इस जगह के ऊपर हमारी जो ज़रूरत है वहाँ भी मैंने जिक्र किया था, एक्सटर्नल फैक्टर एनालिसिस एक वर्ड बड़ा कॉइन किया गया है स्ट्रैटेजी में, बट बेसिकली वो है क्या, इट्स अ फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस. कंपैरेटिव एनालिसिस जब की जाती है तो उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम ये देखें कि हाउ वुड दी कंपनीज व्हिच आर फॉर्मिंग इन अ ग्रुप और इन अ सेगमेंट दैट compete विद ईच अदर, कि उनकी फ्यूचर परफॉर्मेंस जो है वो कैसी होगी. और फ्यूचर परफॉर्मेंस को देखने के लिए नेचुरली वी हैव टू बी एबल टू सी हाउ वेल दे आर ऑपरेटिंग इन द मार्केट, वो कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं जिनको वो अप्लाई कर रही हैं, ब्रुए कार ला रही हैं. एंड डूइंग दैट वी ट्राई एंड बिल्ड a framework, an understanding framework, जिसके जरिए we should be able to find कि हमारी weaknesses कहाँ होंगी, real weaknesses कहाँ होंगी और हमारी strengths कहाँ होंगी. क्योंकि we had discussed this a little bit कि जो strength और weakness हैं they are relative in terms. हमारी relativity वो किसी ऐसे competitor के हवाले से होगी जो हमारे मुकाबले में हो और हमारी उसी मार्केट को सर्व कर रहा हो जिस मार्केट को हम सर्व कर रहे हैं. If you can recall a little, we had talked about the product market scope. उसका भी मकसद ये था कि मैंने ये भी कहा था कि the minute we decide to target a section or a segment, we are actually choosing our competitors. And काफ़ी discussion के बाद we have been able to come to a conclusion कि comparative analysis is critical. यहाँ I would like to just recall a Chinese author who has been known to have written extensively, particularly on the principles of war. और ये जो principles of war उसने लिखी थी 345 BC में, उसकी applications आजकल हम उनको स्टडी कर रहे हैं. हमारे कई रिसर्चर्स जो हैं PhD के या MS के, वो कोशिश कर रहे हैं कि उसके जो प्रिंसिपल्स थे आर्ट ऑफ वॉर के, जो उसने दिए थे, कि हम उसको मार्केट में कैसे अप्लाई करते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो उसने एक बात, एक प्रिंसिपल दिया था वॉर का,
and that was that you should, if you only know yourself, which is the first thing that companies do, they know themselves. तो उसने कहा था कि आपकी जो success है, that is doubtful. But then he said, if you know your company yourself, if you know your competitor or your enemy, and you also know the environment or the terrain is basically the environment or the ground on which you will fight, then you are guaranteed 100% success. तो ये तीनों जो उसके principles हैं, वो हम apply करते हैं, but now we are just recalling what he said, and this is very true for any strategy which will be used to compete. So we need to understand ourselves very strongly. We need to know our strengths and weaknesses, but these strengths and weaknesses are always comparative. So we would like to know our competitors. Number 3, we need to know कि हम किस segment में जो कि train का क्या नाम है दर्जा रखता है, उसको हम अच्छी तरह जान लें. That basically means कि we do know what the customers are, we know the industry, उसका जो structure है वो क्या है, और फिर देखें कि हमारी कंपनी या जो competitors हैं उनकी performance कैसी होगी. Now इस performance को देखने के लिए we need to have certain parameters. Now वैसे तो आप बहुत तरीकों से देख सकते हैं, लेकिन जो strategic group का जो logic था तो वो ये था कि strategic groups में जो competitors आते हैं या जो companies उस group में आती हैं, वो normally उनका जो strategic approach होता है वो normally वही होता है. यानी कि companies अगर एक group है तो उसमें अगर आपने देखा हो कि product glorification बहुत ज़्यादा है, यानी कि product development is the core strategy, तो आपको कई कंपनीज नजर आएंगी जो कोर स्ट्रेटजी के अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट बड़ी रैपिडली करते हैं. लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की थी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की, और मैंने 3 कंपनीज का नाम लिया था जिसमें मर्सिडीज बेंज, ऑडी एंड बीएमडब्ल्यू था, कि जो नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं और उनकी टेक्नोलॉजिकल जो ब्रेक थ्रू है वो है ड्राइवरलेस कार्स के हवाले से. दूसरी तरफ कंपनीज हैं जो रैपिडली प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती हैं, हर साल एक नया प्रोडक्ट लाती हैं, उनका ग्रुप अलग है. वजह यह है कि हालांकि अगर हम लॉजिक में देखें तो देयर विल बी एन ओवरराइडिंग ओवरलैपिंग कंसिडरेशंस. तो जब हम ओवरलैपिंग कंसिडरेशंस को देखते हैं तो हम फिर ये अंदाजा लगाना हमारा काम है कि हम कहें कि एक तो कोर स्ट्रेटेजिक ग्रुप है. कोर स्ट्रेटेजिक ग्रुप वो है कि जो मोर और लेस एक ही अंदाज से compete करते हैं. उनकी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, उनकी प्लेसमेंट, उनके प्रमोशनल कैंपेन्स जो हैं वो तकरीबन आपस में मिलते जुलते हैं. और इसके पीछे भी एक थ्योरी चल रही है और वो थ्योरी है कन्वर्जेंस की. उनका जो लॉजिक है इस थ्योरी का जो इस स्ट्रैटेजिक ग्रुप में भी अप्लाई करता है वो ये है कि क्लस्टर्स ऑफ कंपेटिटर्स टेंड टू कन्वर्ज टुवर्ड स्पेसिफिक बिहेवियर्स इन द मार्केट. अब जो कन्वर्जेंस है वो भी लॉजिकल है, बिकॉज जब कंपेटिटर्स एक दूसरे को देखते हैं और उनकी सक्सेस को देखते हैं तो नॉर्मली दे टेंड टू फॉलो द पैथ ऑफ सक्सेस. तो सक्सेसफुल पैथ्स जरूर आते हैं. हाँ, डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए जो खास पॉइंट्स हैं वो फर्क होते हैं. मिसाल के तौर पे ब्रॉडली मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज टू डेवलप न्यू मॉडल्स एवरी 3 ईयर. तो कंपनीज लॉन्च करती जाएंगी, ये कोर का स्ट्रेटजी के अंदर. हाउएवर ईच प्रोडक्ट के अंदर जो उसकी मिसाल के तौर पे गाड़ियों को अगर हम लें तो उसका जो डिजाइन है उसमें फर्क जरूर होगा, लेकिन हर तीसरे साल नया डिजाइन लॉन्च हो रहा होगा. दैट इज वेयर द स्ट्रेटेजिक ग्रुप कम्स इनटू पोजीशन. और विद इन द स्ट्रेटेजिक ग्रुप वी फाइंड कि उनके जो एक्चुअल माइनर एप्लीकेशंस हैं उनमें फर्क होगा. ये जब हम आगे चलेंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग द प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड एट द बैक एंड ऑफ द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, तो ये वो प्रोसेसेस हैं जो एक्चुअली डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं मार्केट में बिटवीन 2 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कमिंग आउट ऑफ द सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप. ये समझना कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप के अंदर उनकी जो माइनर डेफिनेशनल फ्रेम्स हैं वो भी एक ही तरह के हैं, तो ये I think will be stretching the logic too far. What we are saying is their logical broad approach in strategy is going to be more or less the same in terms of
the kind of technology they use, the kind of manufacturing processes they apply, the kind of product designing they do. हाँ, प्रोडक्ट डिजाइन में फर्क जरूर होगा. मिसाल के तौर पे पेप्सी कोला है और कोको कोला है, दोनों की अपनी बॉटल्स हैं, लेकिन बॉटल्स में फर्क है. हालांकि प्रोडक्ट डिजाइन तकरीबन बॉटल फ्रेम में है. अगर हम ग्लास बॉटल्स पे जाएं, अगर हम कैंस पे जाएं, तो दोनों कैंस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका जो उसके ऊपर डिजाइन है या उसके ऊपर जो उन्होंने कवरेज दी है वो फर्क होगी. और उसका लॉजिक जो है वो हम कम्युनिकेशंस में या एडवर्टाइजिंग में देखते हैं. और रिसेंटली अगर आप देखें तो जो मोबाइल फोन सिस्टम्स हैं, अगर आप टेलीविजन पे गए हों एंड यू माइट बी वाचिंग अ नंबर ऑफ एड्स कमिंग थ्रू, और उसमें अगर मैं बाकी चीजों को छोड़ दूं, सिर्फ चंद को पिक करूं, तो हम देखेंगे क्यू मोबाइल is very extensively advertising on all kinds of TV channels in Pakistan. तो पाकिस्तान की भी एक मोबाइल फोन मार्केट है जिसमें अगर मैं ब्रॉड नाम लूं तो नोकिया है, सैमसंग है, आप सोनी को जानते हैं, आप HTC को जानते हैं, हुवाई को जानते हैं, दे आर ऑल देयर. लेकिन अगर आप गौर से देखें तो क्यू मोबाइल इज वन दैट इज वेरी एक्सटेंसिवली एडवर्टाइजिंग ऑन द टेलीविजन. उसके साथ अगर आप देखें तो सैमसंग, और फिर अगर आप उसे कंपेयर करें तो नोकिया. दीज फॉल इन वेरी हेविली एडवर्टाइज्ड मोबाइल फोन्स इन पाकिस्तान. मैं दूसरी कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, बिकॉज वहां स्ट्रेटेजिक ग्रुप, जैसे मैंने कहा, ये सेगमेंटल फ्रेम्स में ऑपरेटिव होते हैं और सेगमेंट्स के हवाले से ग्रुप बनते हैं. सो यही कंपनी पाकिस्तान में अगर अपना कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट करेंगी तो वो एक तरीका ढूंढेंगी जिसके बेस के ऊपर वो अपनी स्ट्रैटेजी को इवॉल्व करेंगी और उसको इंप्लीमेंट करेंगी. तो अगर हम देखें तो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर क्यू मोबाइल आता है, विच इज वेरी एक्सटेंसिवली एडवर्टाइजिंग, एंड एट अ माइनर लेवल वी फाइंड नोकिया एंड सैमसंग कंपीटिंग इन द टू एरियाज. तो अब लॉजिक में क्यू मोबाइल चूंकि सिर्फ हाई एंड एडवर्टाइजिंग पे है उसका एक्सटेंशन, तो इट माइट स्टैंड अप आउट सेपरेटली फ्रॉम द ग्रुप दैट इज Nokia and Samsung. iPhone का नाम है, their products are available, but we very seldom see these advertisings within Pakistan. तो फिर लॉजिक भी ये समझाती है कि पाकिस्तानी मार्केट में आईफोन का इतना स्ट्रॉन्ग अमल दखल नहीं है. therefore they are not really marketing the product, they are not really competing in the Pakistani market. however चूंकि वो एग्जिस्ट करते हैं, उनके ब्रांड इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वुड बाय. बट जो कोर मार्केट है पाकिस्तान की मोबाइल फोन के अंदर, उसमें आप देखें तो ये तीनों ही ज्यादातर ऑपरेटिव हैं. सोनी इज देयर, बट सोनी की प्रेजेंस इज आल्सो वेरी लिमिटेड. तो given these two frames, we can see that there is a convergence of competitive group which is really going to compete in the market. Yes, if iPhone comes in the market and tries to enter this, it has to be very clear as to what is the formats that the core group is using for the time being, and then it will have to decide कि ये core group जो है, इनके जो product की range है वो किस markets के अंदर operative है. low end priced markets हैं, higher end products हैं. So there is going to be a wide range that is available, and we can see that कि within the two sectors, Q Mobile and Samsung compete across a large sector of products, whereas the Samsung's higher end product is only meant for the top elite class, but the rest of the range, they are more or less competing on the cases of prices, small mobiles with limited characteristics. तो आप अगर थोड़ा सा भी गौर करें तो you will be able to start understanding the logic of the strategic group. लेकिन अब strategic group का ये काम वहीं ख़त्म नहीं होगा. We will be trying to understand कि जब strategic groups बनते हैं तो उनको बनाने में हमें क्या चाहिए. तो लॉजिक है कि वी नीड टू फिगर आउट विद इन अ मार्केट कि विच आर द क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर असेसिंग द स्ट्रेटेजिक ग्रुप. मिसाल के तौर पे वी हैव अ लिस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स. यू विल सी दैट ऑन द पावर पॉइंट. उसके अंदर टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट डिजाइन है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट and number of products to be launched hai, logistics hai, advertising and promotional systems hai. So these are all points that are used for the purposes of assessing. और उसमें हम करते क्या है कि we look at
कि कहाँ व्हाट आर द प्रायोरिटीज ऑफ दीज ग्रुप ऑफ जो फैक्टर्स मैंने बोले, इसमें कंपनीज प्रायोरिटाइज किसको करती हैं. सो व्हाइल वी आर डूइंग दैट वी रेंज द यूजेज ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्टर by a particular company on a scale of let's say 1 to 5 or 5 to 1, which is known as the Likert scale. मकसद क्या है कि we try and rank these by the usage systems of the various companies. तो मिसाल के तौर पे अगर एक एडवर्टाइजिंग के अंदर एक कंपनी बहुत ज्यादा एडवर्टाइज कर रही है तो we might give it 5 the highest rank, whereas the lowest company which is using the least possible advertising we give it number 1. ठीक है. तो वो दोनों ही अगर आप उसको ग्रिड में प्लेस करने की कोशिश करेंगे, जो मैं दिखाऊंगा आफ्टर अ व्हाइल ऑन डेवलपिंग इट ऑन द चार्ट, तो वहां आपको नजर आएगा कि देयर ऑटोमेटिकली दीज टू कंपनीज, लेट्स कॉल देम ए एंड बी. ए इज 5 in advertising and the extents of or extend the intensity of advertising against company B, which is very low intensity of advertising. तो वो ऑटोमेटिकली ग्रुप में एक्सट्रीम रेंज पे चले जाएंगे. अगर हम प्राइसेस में आ जाते हैं तो वी कैन सी दैट प्राइसेस कैन बी, कंपनीज डू हैव अ स्ट्रैटेजी कि वो सीजनली प्राइस एडजस्ट करती हैं. कई कंपनीज बड़ी स्टेबल रखती हैं अपनी प्राइसेस को हायर एंड के ऊपर और वहां से वो हिलती नहीं है, दे डू नॉट. और कई डेली प्राइसेस चेंज करती हैं, डिस्काउंट्स हो रहे होते हैं, प्राइसेस ड्रॉप कर रही होती हैं. तो यू कैन अगेन fit the two companies, and if you have more companies, but for the purposes of example I'm using only two, A and B. तो आप देखेंगे कि कई जगहों के ऊपर they might compete. For example, these two companies might be seasonally adjusting their prices, so they, for the price purposes, they are both in the same competitive group, but in terms of advertising they fall in two extreme groups. इसी तरह आप देखें number of products that are available in the market, a high product proliferation, जिसका मतलब है ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में है तो उसका, या कितने सेगमेंट्स में वो ऑपरेट कर रहे हैं उसका, अगर हम ये भी रेंज करना शुरू करें तो विद पुटिंग देम ऑन अ ग्रिड ऑफ 4 सेक्शन ग्रिड, वी शुड बी एबल टू सी कंपनी ए और कंपनी बी किन चीजों के ऊपर आपस में डायरेक्ट compete कर रही हैं और कई चीजों के अंदर they go on to the extremes. Now if we add another company, let's say we add C into the whole process, we will be able to see कि C किसी जगह पे A के साथ डायरेक्ट compete कर रही है, किसी के साथ B के साथ वो डायरेक्ट compete कर रही है, but in other cases they are all separated. तो slowly हमें क्या समझ आनी शुरू होती है, 4 कंपनीज हम ऐड कर दें, 5 कर दें, कि कुछ कंपनीज रिपीटेडली एक दूसरे के मुकाबले में आ रही हैं because they are using the factors of competitiveness repeatedly. So that becomes the core group in a particular segment, industry, wherever you want to call it. And कुछ ऐसी होंगी जिनको हम peripheral बोलते हैं. Peripheral companies are those groups जिनके core से कुछ चीजें मिलती हैं और कुछ नहीं मिलती. So when we find a maximum group, a larger group, or maybe a group which is banking on using more strategic points in their competitiveness, they will form a core group, and those companies which are using a few of these, they become the peripheral companies. अब इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि हमने जिन एरियाज में competitiveness strong है तो उनके साथ तो हमारा direct competition आ रहा है. So we should be able to establish and analyze those companies very much in depth. So the second group that we think that we have, like I said, we must understand the core group more, but then there are actions that are being taken by other companies which may not have the same level and same number or scope of competitive points. तो हम उनको peripheral बोलते हैं. Those peripheral companies are normally those companies which we need to be aware of, and we need to keep a lookout for them, because कोई पता नहीं किस वक्त they might change one of their competitive points and become part of the core group. तो दोबारा मैं बताऊं, core group के अंदर वो points, वो companies आएंगी जो similar competitive points को इस्तेमाल करती हैं अपने अपनी strategy में, और peripheral वो हैं जो उनसे कम
क्या पॉइंट्स इस्तेमाल करती हैं और मे बी दे माइट बी यूजिंग समथिंग टोटली डिफरेंट. तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, बट रिमेंबरिंग दैट व्हेन यू आर एंटरिंग यू विल हैव टू डिसाइड कि मैं कोर ग्रुप में जाऊं या मैं पेरिफेरल ग्रुप में होऊंगा as a company. But on the other side, if I'm already existing in a segment, in a framework, तो फिर मेरा फर्ज ये है कि मैं वो कोर स्ट्रेटजी ग्रुप ढूंढूं जिसमें मेरा जो ताल्लुक है द कंपेटिटिवनेस दैट आई विल हैव, या जिसके लिए मुझे कंपैरेटिव एनालिसिस करनी है, वो मेरे लिए क्लियर हो जाए. तो मैंने कहा दैट इज व्हाट आवर गोल इज टुडे, टू बी एबल टू हैंडल दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन. एंड देन वी विल सी कि जब हम ये कर लें तो फिर हम इसको इस्तेमाल क्या करेंगे. अगर आपको याद हो तो वी हैड बीन टॉकिंग अबाउट competitive advantage, and I told you that business and marketing strategy का जो गोल है वो है ही how to develop sustain a competitive advantage. Now competitive advantage के अंदर अगर आप थोड़ा सा पिछले lectures पे जाएं तो वहाँ we were supposed to raise barriers to entry which were against competitors if we are already existing in a segment or in a sector. So we will be coming to that. If I will try and see if I can put this today, but because our major focus is on establishing the logic of strategic groups, so we will be trying to see what we can do for today. So I will take you to the charts and I will show you how it happens. But before I go into it, let me give you those 4 or 5 or 6 points. उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, but it depends on. I'm just using a small list of those factors of competitiveness. For example, one of the factors of competitiveness is technology. क्या मैं अगर इसको मैं थोड़ा सा explain कर दूं तो I think you will become more clearer. Let's take the example of the mobile phones that we have. आपको पता है उनके नीचे उसके पीछे जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो पूरे का पूरा जो क्या नाम है मोबाइल फोन की जो जितने भी कैपेबिलिटीज हैं उनको सपोर्ट करता है. आप देखें 3 सिस्टम्स जो कि वेल नोन हैं, उसमें ओएस है जो एप्पल मोबाइल फोन्स इस्तेमाल करते हैं, आईफोन्स करते हैं. उसके बाद है एंड्रॉयड which is being used by Samsung and Sony and all those. Then we also have Microsoft which is used by, let's say, Nokia. अब ये टेक्नोलॉजीज हैं, 3 टेक्नोलॉजीज हैं, सेपरेट टेक्नोलॉजीज हैं. तो हम खुद ही देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज जब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं तो वो कैसे ग्रुप में पढ़ रही हैं. ये तो एक फ्रेम आ गया, बट दैट इज नॉट द होल थिंग. वी ऑल्सो नीड टू नो प्रोडक्ट डिजाइनिंग कैसी है, यानी कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग के अंदर क्या चीज इस्तेमाल हो रही है. और इसमें जो मैंने आपको कार की क्या नाम है आपको एक्सप्लेन किया था automotive industry के अंदर, you can see the way the cars are being designed and you can see some overlaps in those car designing systems. Then we come into the number of product range that we have. The number of product range, अगर हम गौर से देखें तो again we will see कि जहाँ iPhone का ताल्लुक है उसके इतने ज़्यादा क्या कहते हैं products नहीं हैं, number of products. But if you look at Samsung और उसके मुकाबले में अगर मैंने जैसे आपसे कहा था Q मोबाइल को देखें तो we can see there is a range. Whereas Samsung has a very large range, Q Mobile doesn't have that much. iPhone has very limited range. The latest phones that they have launched this year, about a week back, उसमें i5 है, iPhone 5s and iPhone 5C. That is only 2. But उसका क्या ताल्लुक है? उसका ताल्लुक not only on the product design के साथ है, but उसका ताल्लुक pricing के साथ भी है. Now iPhone 5s जो है is a very high price product, whereas iPhone 5C जो है was considered to be a lower mid-range price product. अब on the other side अगर हम देखें तो जो Samsung है, it can have a mobile phone starting from 2,000 rupees going up to 60,000 rupees. So you can see the variety of number of price points that have been created by Samsung. उसी के मुकाबले में अगर आप देखें तो Q मोबाइल है, उधर आईफोन है, इधर सोनी है, एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द पिक्चर वी आल्सो सी नोकिया. तो जो ही हम डिफरेंट पॉइंट्स को लें तो जैसे मैंने कहा था, अगर इन पॉइंट्स को एक्सट्रीम पॉइंट्स को लेकर अगर हम गौर से देखना शुरू करें तो हमें नजर आएगा कि कुछ कंपनीज रिपीटेडली एक ही तरह की
स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब इस सिलसिले में लेट मी से दैट देयर आर 3 और 4 मोर क्या पॉइंट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है, मैंने आपको फ्रूट जूसेस की इंडस्ट्री के हवाले से चंद बातें की थी पहले। नाउ आई कैन यूज देम बैक अगेन टू एक्सप्लेन दिस। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन प्रोसेसेस के अंदर you have the different packaging frameworks that are available or the styles that are available. Tetra Pak क्या नाम है method है processing का of packaging the product. We have bottles, we have plastic, we have glass, we have tin cans. Now any company which is using a particular process of product packaging, तो तकरीबन वो एक ही तरह की behavioral approach में आ जाएंगे for a simple reason कि जब वो शेल्फ पे रखे जाते हैं तो जो टेट्रा पैक के सिस्टम से हैं उनकी शेल्फ स्पेसिंग और उनके जो साइज ऑफ द शेल्फ है वो फर्क होगा टू एल्यूमिनियम कैन का जो पैकेजिंग कर रहे हैं। तो जो ही पैकेजिंग की प्लेसमेंट की बात होगी किसी भी रिटेल आउटलेट में, तो यू विल फाइंड दैट कंपैटिटर्स विल स्टार्ट मर्जिंग टुगेदर, एंड द मिनट यू स्टार्ट मर्जिंग कंपैटिटर्स टुगेदर, वो जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक ग्रुप का वो वाज़ा तौर पे नजर आना शुरू हो जाता है। आप किसी भी रिटेल आउटलेट में जाएं तो आपको टेट्रा पैक के जो प्रोडक्ट्स हैं पर्टिकुलरली फ्रूट जूसेस के अंदर वो एक जगह पे नजर आएंगे, और जो टिन कैन्स में फ्रूट ड्रिंक्स या फ्रूट जूसेस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको एक मुख्तलिफ सेक्शन में या मुख्तलिफ शेल्फ पे नजर आएंगे। इसी तरह आप अगर ग्लास बॉटल्ड फ्रूट जूस को देखेंगे तो वो कहीं और पड़े हुए पाए जाएंगे। अब सिंपल सी लॉजिक है, कंज्यूमर बिहेवियर की लॉजिक है कि जो भी कस्टमर अप्रोच करेगा वो जिस सेक्शन में भी जाएगा उसको जो वहां कंपैटिटर्स नजर आएंगे उसकी चॉइस वहीं पड़ेगी। और अगर वो फ्रूट ड्रिंक्स में जाएगा जहां एल्यूमिनियम कैन्स के अंदर जूसेस मिल रहे हैं तो वहां जितने भी होंगे कंपटीशन उनके बीच में होगा, बिकॉज ये जो कस्टमर है वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू सिक्योर हिज और हर अटेंशन for the purposes of selling our product. अब हमें उसके लिए क्या करना होगा, वहां हम वेरिएशंस क्रिएट करते हैं, वहां हमें देखना पड़ता है कि हम उनमें क्या जिद्दत पैदा करें so that we should be able to have a competitive advantage. Now अगर हम जाते हैं let's say even in tetra packing, तो वहां भी दो किस्म के टेट्रा पैक्स हमें नजर आएंगे। एक ब्रिक पैक की शेप में है which is simple क्या नाम है रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ अ 3-dimensional box, और दूसरी तरफ प्रिज्म है which is a longer box with a kind of a तिकोन on top और थोड़ा सा it's a longest shape, उसको हम प्रिज्म बोलते हैं। अब वहां भी वही बात आ जाती है कि प्रिज्म शेप जो प्रोडक्ट्स हैं वो तकरीबन एक जगह पे लोकेटेबल होंगे, और जो आपके टेट्रा पैक के ब्रिक पैक शेप में है वो सेपरेटली लोकेटेबल होंगे। बात जैसे मैंने कहा जो ही ये चीजें होनी शुरू होती हैं तो हमें नजर आना शुरू हो जाता है कि कंपटीशन करने पे हमें कौन सी चीज कितनी क्या नाम है फोकस में लानी होगी। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप अगर हमें समझ नहीं आएंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल है कि हम जब चूज करें अपनी पैकेजिंग, और फिर पैकेजिंग पे जो डिजाइन हम करेंगे या पैकेजिंग पे जो भी हम प्रोडक्ट के हवाले से चीजें लिखेंगे तो वो कम से कम हमें उन चीजों को तो मद्देनजर रखना होगा, दैट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, बट उसके अंदर हम क्या इनोवेशन लाएंगे, दैट इज वेयर वी विल क्रिएट आवर कंपैटिटिव एडवांटेज। तो कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिनसे हम बाहर नहीं निकल सकते, और हमारे लिए उसमें इनोवेट करना हमारी अपनी कैपेबिलिटीज पे बेस करता है। बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस लेट्स से ऑफ पैकेजिंग। हम पैकेजिंग को मुख्तलिफ अंदाज से कर नहीं सकते बिकॉज मशीन्स हैं, और मशीन्स की एक लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है और उसके ऊपर एक लेवल ऑफ मटेरियल आप पेस्ट कर सकते हैं एक पैकेज के ऊपर। हमें जो भी फिर इनोवेशन लानी होगी वो किसी और अंदाज से पेश करनी होगी। तो कीप इन दीज पॉइंट्स इन माइंड, व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी ड्राइंग अ फ्यू पॉइंटर्स एंड सी हाउ अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप इज डेवलप्ड। एग्जाम्पल दूंगा, ज्यादा कंपनीज इस्तेमाल नहीं करूंगा, ABCD के हवाले से चलेंगे, लेकिन वही पॉइंट्स हम इस्तेमाल कर लेंगे कीपिंग वेरी सिंपल ग्रिड्स। तो पहला काम जो हमें करना होता है इस चीज के अंदर वो है टू बी एबल टू ड्रॉ ग्रिड्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई कॉल दिस प्राइस पॉइंट्स, ठीक है। सो द फर्स्ट फैक्टर इज ऑन द प्राइस।
a stable price and variant prices. कहने का मतलब है कि grouping के अंदर we might find that company A has high price but very stable, whereas company B has low price and it constantly changes the prices. Now we can also see that there is another company which keeps low prices but it's always stable. Now we can also see that there is another company which might be high price but it keeps adjusting using discounting frames. So हमें ये नजर आया कि ये चारों कंपनीज जो हैं ये मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स में बैठी हुई हैं. So we find that they are not the same as on the same grid. But let's say we use another grid. Now we are using product के हवाले से number of products. We say quality, एक जगह पर हम क्वालिटी ले रहे हैं और दूसरे पर है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. So on this point we have variance, that means very high level of number, high product number, and low products, that means very few, high quality and low quality. अब अगर हम यहां देखना शुरू करें तो ये पॉसिबल है कि हमें नजर आए कि number of products are very high, quality is also very high. So it may be A is sitting here. Okay, they have a number of products and so on and so forth. But on the other side, there is low number of products and therefore we find B and we also find C in the same quadrant, whereas D जो है वो इस quadrant में बैठा हुआ है. Now, अगर अभी हम इतने पर ही गौर करें तो we find that B and C are competing more closely using only the quality frame, but price frame के अंदर they are all operating on different groupings. Now if we go to another factor, like I told you, the process or technology. So if we use technology, we may be able to say process technology है, उसकी जो process technology या packaging technology जैसे मैंने अभी बात की थी, उसके अंदर we can have, let's say, keeping this क्या नाम है fruit juice as our mind, we say that they are using Tetra Pak. They are, the other side is the bottles. And we can also claim to, using the packaging systems, we have brick pack. And on the other side, we can also use small packs. या अगर मैं correction करूं, तो यहाँ मैं कहूं कि large packs, which means over 1 liter, और यहाँ 250 करें, और bottle में ले जाएं और इसमें ले जाएं. तो we will again be able to see that we are having bottles and small pack में B, C and D हैं और large pack tetra में A है. अब अगर हम गौर से देखना शुरू करें तो हमें क्या नजर आएगा, जैसे मैंने आपसे कहा था, B and C जो है वो कोर ग्रुप में फॉल कर रहा है, D जो है वो पेरिफेरल हो गया और A जो है वो एक्सक्लूसिव हो गया. सो A stays totally separated from the all this group. Now अगर मैं कंपनी B हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा मुकाबला डेफिनेटली C के साथ है एंड पार्शियली D क्या नाम है D के साथ है. डायरेक्ट मुकाबला जो है वो C के साथ है. लेकिन A पे मेरी नजर जरूर होगी. हो सकता है अगर मैं अपने सिस्टम को डेवलप करूं मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए, अगर मैंने A के साथ मुकाबला करना है तो फिर हमारी जरूरत क्या होगी कि हमें यहां क्या करना पड़ेगा. दैट इज द बेसिक लॉजिक ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप फ्रेम. और इसमें मैंने जो अभी आपसे कहा कि देयर आर 4 or 5, यू कैन इवन इंक्रीज द नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर कंपटीशन एंड यू कैन सी कि जो हम कंपेटिटिव फ्रेम्स के अंदर जो पॉइंट्स ला रहे हैं उस पर रिपीटेडली हम ये चार्ट्स बनाते हैं ग्रिड्स के आफ्टर एनालिसिस और आफ्टर लुकिंग एट द मार्केट. और जैसे जैसे हमें नजर आना शुरू होता है कि बार बार वो ग्रुप जो किसी भी मेजर फैक्टर्स पे टुगेदर आ रहे हैं, तो हमें लॉजिक में समझ आ जानी चाहिए कि दे आर फॉर्मिंग द कोर स्ट्रेटेजिक ग्रुप. और वो जो कभी उस सेक्शन में आते हैं और फिर किसी वजह से बाहर निकल जाते हैं, they become the peripheral, and that company or those companies which are not using the core strategies repeatedly, we keep them on the other side of the picture, but all of them are to be known. अब इस strategic group map की development में जो logic हमारी थी strategic marketing की, वो आपको अब
क्लियरली नजर आनी चाहिए कि स्ट्रेटजी और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट में, पर्टिकुलरली बिजनेस स्ट्रेटजी डेवलपमेंट में, जहां हमारी कंसंट्रेशन जो है वो है ही बेसिकली टू सीक sustain a competitive advantage using strategy as the frame, marketing strategy let's say as the frame. तो हमें उसके लिए पहले ये देखना जरूरी है कि हमारे competitors कौन है. Like I was telling you कि next classes के अंदर जब मैं आऊँगा तो we will be talking about the customer. अभी हमने customer पे बात नहीं की है, उसके behavior के हवाले से कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ दो areas पे focus किया था. One is the structural analysis of the industry on which we operate, and the second one was basically the competitors that we have. So today, like I've told you, we have been able to, I hope, clearly understand कि develop करना ये जो क्या नाम है strategic group map बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें मार्केट की जो इंफॉर्मेशन है वो होनी बहुत जरूरी है. मार्केट हैज टू बी एबल टू जज कि कंपटीटर्स जो हैं वो किन फ्रेम्स के ऊपर या किन फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं अपने क्या नाम है स्ट्रैटेजी के अंदर, और किस पे उनका एम्फोसिस ज्यादा है. मैंने आपको पहले भी कहा कि उसमें टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट डिजाइन है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, मार्केटिंग इटसेल्फ इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इंक्लूड्स the communication strategy and the advertising strategy. Services क्या प्रोवाइड हो रही हैं, that is very critical. फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चल रही है उनकी, उसमें उनकी सप्लाई चेन कैसे ऑपरेटिव है, और सप्लाई चेन के अंदर किन वेंडर्स की और किन सप्लायर्स ऑन और जो फॉरवर्ड और बैक एंड के ऊपर जो सप्लाई चेन है उनके साथ उनके ताल्लुकात कितने स्ट्रांग हैं, किस किस्म के ताल्लुकात हैं. ऑल दीज फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू जज के हमारे जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप है वो है क्या. अब हम जब इस पॉइंट पर आ चुके हैं कि वी हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स बनने हैं, तो मैंने आपसे ये कहा था कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनाने के बाद हमारा फंक्शन ये है टू सी कि हम अपनी मार्केट को, अपना जो सेगमेंट है एज रिलेटेड टू द कंपटीटर्स, उसको प्रोटेक्ट कैसे करें. अब उस प्रोटेक्शन के लिए ब्रॉड जेनरिक स्ट्रैटेजीज हमारे सामने हैं, उस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे एंड देन वी विल ट्राई एंड सी कि हम कैसे सस्टेन करें उन पॉइंट्स के ऊपर. अब ये पॉइंट्स ये नहीं है कि पैकेज डिज़ाइन जो है उसमें हम क्या वेरिएशन लाएं, उसका कलर क्या बनाएं. मिसाल के तौर पे पैकेज का डिज़ाइन वाइट होना चाहिए, या पैकेज का डिज़ाइन में जो कलर है वो ब्राउन होना चाहिए या येलो होना चाहिए. ये एक सेपरेट डिस्कशन होगी, लेकिन पहले हमें ये फोकस पर करना पड़ेगा कि की फैक्टर्स कौन से हैं जिन पे हम कंसंट्रेट करें. और मैंने जैसे आपसे कहा था कि की फैक्टर्स वो हैं, सक्सेस फैक्टर्स वो हैं जो आपकी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के बाद सक्सेस की तरफ ले जाते हैं. अगर वो की पॉइंट्स आपके जहन में नहीं है तो होगा क्या कि यू विल नॉट बी एबल टू टारगेट ऑन टू द कोर एरियाज ऑफ स्ट्रैटेजी, रादर यू विल बी बेसिंग योरसेल्फ ऑन वेरी माइनर थिंग्स जिसका हो सकता है कि पूरी स्ट्रैटेजी के ऊपर इम्पैक्ट ना आता हो. Now, before we move into the actual manner of how barriers are created, we need to understand a concept that has been there to be able to caution us while we are developing our frameworks to create these protective barriers. Now, इसको हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लिटरेचर के अंदर अम्ब्रेलाज बोलते हैं जो क्रिएट हो जाते हैं फॉर वेरियस रीजंस. नाउ उसमें फिर एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा तो उससे हो सकता है आपको बात क्लियर हो जाए. फॉर एग्जांपल, इफ यू पुट इन टू मच ऑफ एडवर्टाइजिंग इन द मार्केट और आपके एक्सपेंडिचर इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आपकी मार्केट जो है फ्रैंकली बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट यू हैव क्रिएटेड इन द मार्केट, और उससे जितनी अवेयरनेस आउटसाइड की फ्रेम में क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट होना शुरू होता है, और खास तौर पे उस जगह पे जहां आप पहुंच नहीं सक रहे, तो वो एक ऐसा अम्ब्रेला आप बना रहे हैं कि जहां कंपटीटर्स बगैर मुश्किल के, बगैर तकलीफ उठाए, बगैर प्रोडक्ट को अनाउंस किए वहां घुस सकते हैं, बिकॉज ऑफ द वन सिंपल फैक्ट कि आपने उनके लिए एक ऐसा अम्ब्रेला क्रिएट कर दिया. ऐसा है जैसे एक दरख्त है और दरख्त के नीचे मशरूम्स उगते हैं. वजह क्या है कि दरख्त का जो साया है वो इतना फैल जाता है कि मशरूम्स के लिए उनके नीचे
अपना आप को जिंदा रखना वो आसान हो जाता है। तो एडवर्टाइजिंग एक कंपनी कर रही होती है एक्सटेंसिवली, लेकिन मार्केट जो है जहां वो खुद ऑपरेटिव हैं, जहां उनका प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, वो उससे भी बियॉन्ड जा रहा है। और बियॉन्ड में जो मार्केट के जो पहले वो लोग थे, वो कस्टमर्स थे जिनको अभी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो उसके खर्चों की बेसिस के ऊपर एक मार्केट के अंदर नीड क्रिएट होनी शुरू हो जाती है उन एरियाज में जहां वो खुद तो नहीं पहुंच रहे, लेकिन कंपैटिटर्स के लिए मौका प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो इस एरिया में चले जाएं। जब ये चीजें होनी शुरू हो जाती हैं तो उससे एक तो वार्निंग है कि जितनी भी एडवर्टाइजिंग या जितनी भी आप एफर्ट लगाएं वो उतनी हो जहां तक आपने पहुंचना है। दूसरा, बैरियर्स हैं, तो बैरियर्स की एक अपनी नौयत है। जब आप क्रिएट करेंगे तो वो कुछ ना कुछ एक अम्ब्रेला प्रोटेक्शन के तौर पे देगा, लेकिन वो अम्ब्रेला जो है वो भी क्या नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर कि जो बैरियर्स हैं और उनका जो अम्ब्रेला क्रिएट हो रहा है उसका आपस में ताल्लुक क्या है। तो लेट मी टेक यू टू द बोर्ड अगेन एंड आई विल ड्रॉ दिस चार्ट फॉर यू। और इस चार्ट को देखते हुए we should be able to use it for application purposes. मिसाल के तौर पे we have 4 quadrants again, which is normal in developing the logic of marketing. तो एक तरफ we say low and we say high. हम कहते हैं कि ये अम्ब्रेला जो है ये क्रिएट हो रहा है, और ये अम्ब्रेला जो डायरेक्टली क्रिएट हो रहा है इसका ताल्लुक है बैरियर्स के साथ। तो on the other side we have the barriers. Now again the barrier has high barriers and low barriers. Okay, now we have 4 quadrants which are very simple. अब लॉजिक है कि अगर बैरियर हाई है और वहां अम्ब्रेला जो है इज प्रीटी लो, तो दिस सेगमेंट विल बी खासा प्रोटेक्टेड। यहां डेंजर कोई नहीं है क्योंकि आपका जो बैरियर्स आपने क्रिएट किए हैं वो इतने स्ट्रांग हैं। तो और उधर से जो अम्ब्रेला का इम्पैक्ट है, जो मैंने कहा एक स्प्रेड जो आया हुआ है वो बड़ा एक छोटे लिमिटेड एरिया में आया हुआ है। तो देयरफॉर दिस इज मोर सेंसिबल व्हेन वी टॉक अबाउट निशेस। और हम कहते हैं कि निश के अंदर होता ही ये है कि बैरियर टू एंट्री इज वेरी हाई इन द सेंस के हो सकता है मार्केट बड़ी छोटी हो, और अगर मार्केट छोटी है और उसके अंदर आप एक खास ऐसी चीज प्रोड्यूस करके दे रहे हैं जो कोई और नहीं कर सकता, तो वो ऑटोमेटिकली खासी प्रोटेक्टेड हो जाएगी, बिकॉज पीपल विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू गेट इट। Now, on the other side, अगर barrier of entries are high, you have been able to create, but जैसे मैंने कहा था कि अम्ब्रेला भी बहुत वाइड स्प्रेड हुआ है, तो ये जो भी आपकी स्पेशलिटी है वो रिस्क में है, ठीक है, एट रिस्क। बिकॉज फ्रैंकली एक आपने अम्ब्रेला क्रिएट कर दिया, यू हैव मेड द होल कंपेटिटिव सिचुएशन अवेयर ऑफ दिस होल प्रॉब्लम। सो लॉजिक कहता है कि ये जो बैरियर्स एंट्री के हैं वो क्रिएट तो हुए हैं, और उसके अंदर जितनी भी कंपनीज उस बैरियर के अंदर आई हुई हैं, देन देयर विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बिटवीन दिस ग्रुप एंड दे आर एट अ वेरी सब्सटैंशियल थ्रेट ऑफ लूजिंग द मार्केट्स। हाउएवर, अगर अम्ब्रेला भी छोटा है और बैरियर्स ऑफ एंट्री भी बहुत कम है, तो दे आर नॉर्मली कमोडिटी मार्केट्स, जिसको अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आएगा। मिसाल के तौर पे आटा है, वहाँ ना कोई बहुत बड़ा मेजर अम्ब्रेला क्रिएट हुआ है, बैरियर ऑफ एंट्री भी कोई ज्यादा नहीं है, कोई किसी से पैकेज करा के तो वही आटा बेचना शुरू कर दे। सो दैट इज नॉर्मली व्हाट वी सी व्हेन वी हैव commodities operating in this area. Now on the other hand, when the umbrella is very high, like I told you, vast awareness for everybody, the customers are aware, everybody is now more or less aware, बट वहां एंट्री बैरियर्स आर सो लो, तो फिर प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि वहां द डेंजर इज ऑफ डाइंग, ठीक है, डेथ इज मोर रेलेवेंट हियर। और अब अगर आप जरा भी इसको इसी मॉडल को कंपेयर करने की कोशिश करें विद द बीसीजी मैट्रिक्स, आप लोगों ने वो भी पढ़ा होगा बीसीजी मैट्रिक्स, जहां हम पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं। वो पोर्टफोलियो एनालिसिस कंपनीज और प्रोडक्ट्स के हवाले से भी की जाती हैं, और अगर हम उसी को इसमें अप्लाई करें तो यू विल बी एबल टू सी कि जहां वहां डॉग्स का कॉन्सेप्ट आता है तो वो ये डेथ का फ्रेमवर्क है जो यहां डाल दिया गया, और उसकी रैशनैलिटी भी आप देखें तो वो वही बनती है।
अगर आप कमोडिटीज को देखें तो ये वो कैश काउज बनती हैं कि जहां ना ज्यादा एडवर्टाइजिंग की जरूरत है, ना बैरियर्स क्रिएट करने की जरूरत है, सो योर इन्वेस्टमेंट in the segment is very low. Or normally this happens when a product has become a commodity. It does not stay in the same frame as a specialty good. On the other side, if you look at it, कि जहाँ umbrella is very high, but barriers of entry are also very high, तो वहाँ हम देखते हैं कि these are special products which are in the BCG matrix में अगर आप गौर करें तो ये question marks में होता है because ये पता नहीं होता कि इसके साथ risk कितना है, fail करेगा या नहीं करेगा. So that's a very interesting combination of these two logical points. One is the BCG matrix. थोड़ा हम आगे चलेंगे तो tools के हवाले से जब हम बात करेंगे portfolio analysis के, तो I will try and recall this at that point also. तो आप लेकिन चूंकि you people have read BCG matrix और अगर आप जाएं क्या नाम है अपनी लाइब्रेरी की बुक्स में कहीं भी तो BCG matrix निकालें तो you will be able to see that more or less it is following the same logic. The only difference is कि BCG मैट्रिक्स के अंदर ग्रोथ एंड रिलेटिव मार्केट शेयर होता है और हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बैरियर्स ऑफ एंट्री और अम्ब्रेलास का एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं. और मैंने जैसे कहा था अम्ब्रेला एग्जिस्टेंस इज व्हेन नॉलेज इज वेरी वाइड स्प्रेड और बैरियर्स ऑफ एंट्रीज आर वेरी हाई. तो कंपैटिटिवली वी डू नॉट नो विच ऑफ द कंपनीज विच ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी एबल टू सक्सीड आउट ऑफ दैट होल लॉट. अब जो प्रोटेक्टेड है अगर आप BCG मैट्रिक्स को याद करें तो वहाँ BCG matrix के अंदर stars दिए हुए हैं. Stars are those which have protection, but they are new to the market and therefore they are growing at a very high rate. Obviously, हमें भी मालूम है कि जब हम उसको अब इसको भी मैं जब आपके साथ मिलके तो product life cycle के साथ apply करेंगे तो we will see a combination of things coming through. ये जो integration है हमारी study की जो मैंने शुरू में ही आपको identify कर दिया था ये बहुत critical है to be able to see all these concepts जो मुख्तलिफ जगहों पे पड़े हुए हैं कि हम इनको इंटीग्रेट कैसे करें. तो जैसे मैंने कहा BCG मैट्रिक्स के अंदर अगर आप गौर करें तो जो पहला क्वाड्रेंट है दिस इज नोन एज द स्टार, द सेकंड क्वाड्रेंट इज नोन एज द क्वेश्चन मार्क, द थर्ड इज द कैश काउ एंड द फोर्थ इज द डॉग्स व्हिच आर सपोज्ड टू बी द वंस दैट विल फिनिश ऑफ. और फिर हम इसको रिलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कि जो प्रोडक्ट्स की ग्रोथ होती है या जो शिफ्ट करते हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है और फिर क्या हम इन तीनों लॉजिक्स को आपस में अप्लाई करके देखें कि हमारी जो एनालिटिकल फ्रेम्स हैं जो हमने डेवलप किए हैं और जो हम कोशिश करेंगे अपने एनालिटिकल फ्रेम्स को डेवलप करने के लिए उसमें जो हम बैरियर्स क्रिएट करेंगे, जो हम कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क्स डेवलप करेंगे तो कहीं हम उसमें गलती तो नहीं कर रहे. That will become our concern because we would not like to do something wrong. और जैसे मैंने कहा कि to do the right thing is to follow certain major principles. अगर वो principles हमारे पास हम उनको ignore कर दें तो yes, sometimes success is for those people who take a very risky steps, but ये common नहीं है. We have to be aware कि अगर हम ये risky steps ले भी रहे हों तो उसके अंदर सबसे मेजर इशू क्या होगा और क्या प्रॉब्लम्स अकर कर सकते हैं. मैंने आपको बहुत पहले इसके लेक्चर शुरू करने से पहले भी ये भी बताया था कि जब इन्वायरमेंट्स में टर्बुलेंस हो, अनस्टेबिलिटी हो तो हम प्लानिंग जो है उसका होराइजन कम हो जाता है. प्लानिंग होराइजन चूंकि कम हो जाता है तो हमें बिकॉज रीजन क्या है प्लानिंग होराइजन कम होने की, जैसे हमने उस वक्त कहा था कि हम फोरकास्ट नहीं कर सकते कॉजैलिटी के बेस के ऊपर. कॉजैलिटी क्या है कि आज हम एक्शन लें 4 साल के बाद क्या हो. द प्रोजेक्शन और द फोरकास्ट इज ओनली लॉजिकल इफ ऑल द वेरिएबल्स इन द मार्केट स्टे मोर और लेस विद इन पैरामीटर्स. लेकिन अगर ड्रास्टिक चेंजेस आ रही हैं तो फिर हमें वी हैव टू बिकम वेरी केयरफुल इन लॉन्चिंग अ स्ट्रैटेजी व्हिच मे नॉट हैव द रेलेवेंस एज वी मूव इनटू द फ्यूचर. तो वहां हमने देखना यह है कि जब हम बैरियर्स क्रिएट करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैरियर्स के बेस के ऊपर हम सिर्फ यही नहीं कि बैरियर क्रिएट कर रहे हैं बट उससे अम्ब्रेला इतना बढ़ा रहे हैं कि उसके नीचे वी कैन फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ कंपैटिटर्स और जितने ज्यादा कंपैटिटर्स किसी जगह पे क्रिएट हो जाए तो डेंजर हो जाता है, कंपैटिटिव राइवलरी बढ़ जाती है. सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दीज पॉइंट्स. नाउ
at the end of this lecture, like I said, I was going to try and suggest to you how to raise barriers. तो वो हम कवर करेंगे बैरियर्स को रेज करने के लिए, और इसी तरह से जो मैंने कहा कि बीसीजी मैट्रिक्स और जो पोर्टफोलियो एनालिसिस का फ्रेम है वो हमने नॉर्मली देखा है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज के अंदर इस्तेमाल होता है, विच इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पॉइंट दैट वी विल बी लुकिंग एट. लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम उनको अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के ऊपर ना अप्लाई करें, तो हम वहां भी करते हैं. और इसी तरह से स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप्स नॉर्मली आप देखेंगे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी लेवल के ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बट लॉजिक यही है कि वहाँ भी स्ट्रैटेजीज ही होती हैं और स्ट्रैटेजीज वही होती हैं जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज के तौर पे हम स्टडी कर रहे हैं. तो कीपिंग दीज 2 पॉइंट्स इन माइंड, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल मूव टुवर्ड्स portfolio analysis, which is another part of the analysis to create comparativeness and see where we stand within the framework so that we can then develop our own kind of barriers and strategies to create those barriers to protect the competitive advantage that we have. Okay, with this, I come to the conclusion. See you next time. Take care of yourself. Allah Hafiz.